congratulate all of you for being part of this wonderful event. And I hope we were able to answer some of your questions through this webinar. And if you have any unanswered questions, or if you have new questions regarding the business or the products, please feel free to ask the person, and that's what they're supposed to do, answer your questions. हमारा intent in seminars के through is not to sign you up or to give you products or sell products. That's not our intent. हमारा intent is to educate you, inform you, help you analyze the business, the opportunity, and the products, if you will, and help you achieve whatever you want to achieve. And I hope you have some fantastic big goals. We are in an incredible time in India today where we are expecting a multi-decade growth to happen. It never happened in the history of India. We are going to become the third largest economy in the world. And so I hope all of you and are setting some very big goals for yourself. In fact, I was kidding with Aarti the other day that हमारे seminars में आजकल दो टाइप के लोग आते हैं. पहले सिर्फ एक ही आते थे, आज से एक डेकेड पहले, बट आजकल दो टाइप के लोग आते हैं. पहले वो who are making promises to their family based on what based on the India growth story, and they're excited about it. And the second set of people are people who are frustrated and upset, and they're looking for ways to fulfill the promises they have made to the family. Because this is that time where we are allowed to dream, we are allowed to believe that we can have whatever we want to. And anyone can achieve anything they want from this particular opportunity. And I say this with my hand on my heart, because that's what I did, In 1998, when this opportunity opened up in India, I left behind a fantastic job in a fantastic company, in a fantastic industry, because I wanted what this business can offer, and this business can offer things which, my job could not have offered. My job was going to offer me a great salary, great income, but it was not going to be able to offer time and money which I wanted, which is the promise which I had made to my family. See, growing up, we had a great family growing up, but I rarely saw my father because he was always working in the Bhilai steel plant. And one of the things which I wanted to do for my kids was that I wanted to be a full-time dad, and I wanted to be close to my parents also. But I knew that with Oracle I could never achieve that. So even though I had failed in this business for 5 years in US, I knew what the potential I had in this business, and that's why I came back to India. And I can tell you, after 25 years, I have ticked off almost most of the promises which I had made to myself and to my family 25 years ago. I have ticked them off. And today I'm ready to I have written down another set of goals for the next 10 years. And I want to be a part of this India story. I want to ride this opportunity along with the India story. And I hope you want to do the same thing. I was recently listening to a management commentary of a luxury watch retailer, and he was talking about how they're expecting their industry to grow by 15-20% CAGR for the next 10 years. And the funny thing was, this guy sells watches worth lakhs and crores, right? I went to his website to see the watch, and there was a watch which was worth 5.5 crores. So the host asked this guy, the owner, where are you opening your stores? How do you plan to grow, etc., etc. So he was telling the whole story. He was saying, we have just recently opened a store in Siliguri. We are looking for a place in Kanpur. We are looking for a place in Ahmednagar. And he kept rattling off names of tier 2 and tier 3 city. And the host finally said, what about Delhi, Mumbai? He said, that's already there, but the real growth is going to come from the tier 2, tier 3 cities. And that's the exciting part about the India growth story. It's going to happen pan-India. And that's the question which people ask all the time. Who is going to benefit from this growth? Who is going to benefit from this growth? Anyone and everyone. That's the beauty of it. Anyone and everyone who is willing to pay the price, who is willing to do whatever it takes to take advantage of the opportunity. See, nothing should be free, especially opportunities. Opportunity should never be free. कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना यार. एक किताब थी, बहुत ही पॉपुलर किताब थी, फेमस लाइफस्टाइल कोच थे, उसका नाम था मार्शल गोल्डस्मिथ. उन्होंने लिखा था, व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर. इसका मतलब कि
आपने जो कुछ भी अचीव किया है अभी तक, अगर अब आपको आगे अचीव करना है तो आपको बदलना पड़ेगा, राइट? तो ऐसा ही है अभी भी, इस अपॉर्चुनिटी में भी सेम चीज है। अगर हमको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, क्योंकि ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से, बदलना तो पड़ेगा ना, है ना? मगर हमारे आज के कल्चर में क्या है, सोशल मीडिया कल्चर जो है उसमें कहा जाता है कि आप वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे और आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। समहाउ वी आर मेड टू बिलीव कि सक्सेस जो है बहुत इंस्टेंट है और बहुत आसान है। सक्सेस सिंपल होती है, सिर्फ ना आसान होती है ना मुश्किल होती है, सिंपल होती है। इसका मतलब क्या कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको बार बार रिपीटेडली करते रहना पड़ेगा, मगर वो सिंपल है, आसान नहीं है। अगर हम सफलता के साथ आसान जोड़ देते ना तो फिर हम बिजनेस नहीं कह सकते उस चीज को, करेक्ट? कोविड के समय बहुत सारे बिजनेसेस शुरू हुए थे जिन्होंने फायदा उठाया था लोगों के घर पे रहने का, कोविड की क्राइसिस का फायदा उठाया था। बुरे सेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं, बट एक फायदा उठाया था क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि लोग घर पे बैठे थे। बट वही बिजनेसेस अगर अपने आप को बदल नहीं पाए, अगर वो बिजनेसमैन ओनर अपने आप को बदल नहीं पाया उस प्रोसेस में, आज वो सारे बिजनेसेस, ज्यादातर बिजनेसेस बैंकरप्ट हो गए हैं, अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो। सो कभी भी दोस्तों, कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढना बिजनेस के लिए। बिजनेस की दुनिया में कोई अपॉर्चुनिटी में कभी कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, राइट? और मैं ये आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मेरे को 30 साल का अनुभव है इस बिजनेस में, और मैंने इस बिजनेस की वजह से मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है सफल लोगों की, बहुत सारे सफल लोगों से मिला हूं, और एक चीज कॉमन थी, हर एक व्यक्ति ने ये बोला कि कोई भी दशक हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, शॉर्टकट और अपॉर्चुनिटी एक साथ नहीं जा सकते। यू कैन नॉट हैव अ शॉर्टकट फॉर द अपॉर्चुनिटी, राइट? और उसका सिंपल सा कारण है कि दैट्स व्हाट मेक्स इट इवन फॉर एवरीवन। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से हो वो अचीव कर सकता है, करेक्ट? सो क्या कीमत चुकानी है इस बिजनेस में? तो पहले उस कीमत की बात करने से पहले हम इस बिजनेस की मॉडल को समझ लेते हैं कि बिजनेस का मॉडल क्या है साहब, राइट? इस बिजनेस के मॉडल में 4 पार्टनर्स हैं, करेक्ट? 4 पार्टनर्स हैं। पहला पार्टनर है एमवे कॉर्पोरेशन। सबसे ज्यादा कोई भार उठाता है तो वो एमवे कॉर्पोरेशन उठाता है। एमवे कॉर्पोरेशन का काम क्या है? एमवे कॉर्पोरेशन का काम है हमारे लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना जो कि हेल्थ के लिए अच्छे हों और किसी को कोई हार्म ना पहुंचाए। R&D करना, R&D किस लिए करना? आज के प्रोडक्ट्स के लिए और आज से जो आने वाले प्रोडक्ट्स है, आज से 10 साल बाद जो प्रोडक्ट आने की जिस प्रोडक्ट की कुछ लगता है जरूरत पड़ेगी, उन प्रोडक्ट्स पर अनुसंधान करने की। बिकॉज मार्केट में अगर आपके पास प्रोडक्ट है मगर वो प्रोडक्ट अगर 10 साल पुराना प्रोडक्ट है तो मार्केट में आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सो एमवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो आज के प्रोडक्ट्स है, मतलब आज की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट? दूसरा काम एमवे कॉर्पोरेशन का है मैन्युफैक्चर करना उन प्रोडक्ट्स को, करेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग काम उनका खुद का है, उनके खुद के खेत है, करेक्ट? एक और काम जो है एमवे कॉर्पोरेशन का वो है डिलीवरी करना, मतलब प्रोडक्ट्स जो ऑर्डर होते हैं उनको डिलीवर करना पैन इंडिया, कहीं पे भी 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना, ये काम एमवे कॉर्पोरेशन का है। गवर्नमेंट के साथ लिएजॉन करना, राइट? हमारा वॉल्यूम कितना हो गया उसे रियल टाइम पे हमें बताते रहना, वो भी काम इनका। इसलिए क्या, दे ओन मेन फ्रेम्स एंड मैसिव कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स विच मेक श्योर कि आपका वॉल्यूम, जो करंट वॉल्यूम है वो तुरंत आपको पता चलता रहे। इसका मतलब क्या कि सपोज करो आपका एक कस्टमर बैंगलोर में है और उसने कुछ खरीदा तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाना चाहिए कि वो सेल आपके नाम पे होगी, तो वो सिस्टम भी मेंटेन करता है एमवे कॉर्पोरेशन। सो अगर आप मोटा देखा जाए तो एमवे कॉर्पोरेशन का काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना, R&D करना, प्रोडक्ट को डिलीवर करना, गवर्नमेंट के साथ काम करना, कॉम्पेंसेशन देना हमको, हमारे बोनसेस पूरे ट्रैक करना, हमारे ऑर्डर्स, इन्वेंट्री सब कुछ ट्रैक करना। एक काम जो एमवे नहीं कर सकता वो क्या है? एमवे कैन नॉट सेल और मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो ना बेच सकते हैं ना मार्केट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एमवे का एम्प्लॉय कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट्स। सो पहला पार्टनर है एमवे कॉर्पोरेशन। दूसरा पार्टनर कौन है? दूसरा पार्टनर है नेट 21। उसका काम क्या है? उसका काम है हमको सपोर्ट करना, टूल्स के थ्रू, ऑडियोज के थ्रू, बुक्स के थ्रू, स्ट्रैटेजीज के थ्रू, जो वर्ल्ड वाइड में जो वर्ल्ड ओवर में ग्लोबली जो स्ट्रैटेजीज काम करती हैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब स्ट्रैटेजीज हमको वो मुहैया कराता है, राइट? ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट? जो कि एक ऐप के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं कभी भी। जो भी इंटरनेशनल सेमिनार्स हो रहे होते हैं, वी कैन हैव एक्सेस टू देम अक्रॉस द ग्लोब विदाउट हैविंग टू ट्रैवल। हम किसी वहां पे सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं।
सो ये काम है नेटवर्क 21 का. सो नेटवर्क 21 का काम क्या काम है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मोटिवेशन प्रोवाइड करना, बट ये काम क्या नहीं कर सकते वो? सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ द एमवे प्रोडक्ट्स, वो भी नहीं कर सकते. तीसरा कौन है? आपकी टीम. उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि आपको एमवे से जोड़ना, नेटवर्क 21 से जोड़ना, एक सीमलेस तरीके से इंटरफेस दिलाना, आपको हैंड होल्ड करना सिखाने के लिए कि इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा. ठीक है ना? ये सारा काम आपकी टीम करेगी. मगर ये क्या आपकी टीम क्या नहीं कर सकती? आपके लिए सेल नहीं कर सकती और मार्केट नहीं कर सकती. वो काम किसका है? सिर्फ आपका. सो जो आपका काम क्या है एज अ पार्टनर? आपका काम है प्रोडक्ट को सेल करना और मार्केट करना. अब आपने आपसे एक सवाल पूछिए, सारा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? एमवे कॉर्पोरेशन और नेटवर्क 21. मगर सेल्स कौन कर रहा है? सिर्फ आप. इज इट एन इनक्रेडिबल सिनर्जी? एंड दैट्स व्हाई इट्स सच एन इनक्रेडिबल मॉडल कि वी डू नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी अपफ्रंट. कहा जाता है ना कि बिजनेस में रिस्क नहीं है, तो कहते हैं कैपिटल रिस्क नहीं है. हमारे को अपना कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे अपना मार्केट एक्सपैंड करना है बैंगलोर में या जम्मू कश्मीर में या अंडमान निकोबार में, मुझे मार्केट एक्सपैंड करने के लिए और खर्चा नहीं करना पड़ेगा. आई कैन जस्ट पिगी बैक ऑन द एमवे डिलीवरी सिस्टम, ऑन द एमवे प्लेटफॉर्म, एमवे बिजनेस, राइट? बिकॉज उनका काम है डिलीवरी करना. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल रिस्क. नहीं है हम, वो सारा रिस्क एमवे कॉर्पोरेशन लेता है हमारे लिए. और इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं इसमें, बिकॉज अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोट एंड कोट. सो बहुत लोग आ जाते हैं. अब अगर ज्यादा लोग आएंगे बिना ये सोचे कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो क्या होगा? और वो ये सोच के आते हैं यार ये तो बहुत सिंपल सा बिजनेस है, शॉर्टकट लेके आएंगे, इसमें शॉर्टकट में पैसा बन जाएगा. तो क्या होगा? बहुत सारे लोग बाहर चले जाएंगे इसमें से. और इसीलिए बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको जो बोलते हैं कि मैंने भी किया था. बट आपको मैं एक चीज बताता हूं, इस सब की वजह से अपॉर्चुनिटी कम नहीं होती. अपॉर्चुनिटी अभी भी उतनी है. और वो लोग जो रुकते हैं इसके अंदर और उसको सही तरीके से, जो कीमत चुकानी है वो चुकाते हैं, और जो रोल उनको अदा करना है वो अदा करते हैं, they are rewarded incredibly from this business. In fact, इस बिजनेस में तीसरी चौथी पीढ़ी को एमवे कॉर्पोरेशन पे कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि दादा परदादा ने बिजनेस शुरू किया था, उस बिजनेस को इतना अच्छा फाउंडेशन बनाया कि वो 3 पीढ़ी तक चलता रहा, और जो उसके अंदर से रिवॉर्ड्स आ रहे हैं वो आज चौथी पीढ़ी को जा रहे हैं. दैट्स हाउ इनक्रेडिबल दिस बिजनेस इज. बट अगेन, just by knowing about the business or just signing up in the business does not make it a business. It does not qualify कि हमें rewards मिलने शुरू हो जाने चाहिए. That's what is the price you have to pay. Okay? So, what is the role? What is your role? What is my role in the business? The role we have is we have to sell and market products. We have to create the turnover for the Amway Corporation. Amway cannot create turnover. We have to create. This is our role. But what did I say? You cannot, you cannot get, you cannot go there. What got you here won't get you there, right? इसका मतलब क्या? आप जैसे हो वैसे ही अगर सोचते हो कि इस बिजनेस में आओगे और आप मार्केट कर लोगे, सेल कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल. करेक्ट? थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ेगी. सो व्हाट इज द फर्स्ट प्राइस यू हैव टू पे? द फर्स्ट प्राइस यू हैव टू पे इज यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. इसका मतलब क्या? यू हैव टू नो योर रीजन. क्यों कर रहे हो बिजनेस, ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए. आपको किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कन्विंस करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको बिलीफ दिलाने के लिए कि आपका बिजनेस, आपका रीजन बहुत अच्छा है, आप अपना रीजन पूरा कर सकते हो. यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. इसका मतलब क्या? यू हैव टू रीच अ पॉइंट. द प्राइस इज you have to reach a point where you can believe in your business, in your dreams every day, every minute, in spite of the fact that you might be getting disappointments and failures. A lot of people give up on their dreams because they fail in something. How can you give up on your dream? What was the dream's fault? So the first thing which you have to learn to do is you have to learn to motivate yourself. I had to do that.
I used to go, I started in 1998, but I can tell you, 1993 I started. In 1993, I had almost zero turnover. 94, zero turnover. 95, near zero turnover. I'm not including the volume which I was doing myself. Year number 4, 5, zero turnover. But one thing which I kept doing was I kept going to the seminars. I kept attending the seminars. I kept listening to audios. I kept reading books. And that's what made all the difference for me. एक पॉइंट आ गया था कि जब मैं सेमिनार जाता सिर्फ लोगों को देखने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन आया इस बार कौन सफल हुआ। मैं अपने लिए जाता ही नहीं था, मैं जानना चाहता था कि क्या कोई सफल हो पा रहा है इस बिजनेस में। That's what I used to do. And when I would see the recognition, I would say, my God, इसने भी कर लिया, ये भी कर सकता है। Oh my God. And that's what happened. 93, 94, 95, 96. 96, I reached a point where I became self-motivated. I did not need anyone to motivate me anymore. I knew I could do it. I knew I deserved success. So the first thing which you'll have to do to become successful in this business and to become the best partner in this business is you have to be self-motivated. Number 2, you will have to learn the skills of the business. हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट्स जो हम मार्केट करते हैं, राइट? आप अपने आप से एक सवाल पूछो, जब आप इस प्रोडक्ट को देखते हो, आप क्या सोचते हो? ये आपका प्रोडक्ट है कि एमवे का प्रोडक्ट है? अगर आपके दिमाग में ख्याल आता है कि ये मैं एमवे का प्रोडक्ट है, तो फिर अभी दिल्ली दूर है। जब तक आपके दिमाग में आप हर एक प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट नहीं देखते, तब तक आप उस प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते। आप अपना बिजनेस तो कर ही नहीं रहे ना। 1993 में मैं एमवे के लिए काम कर रहा था, 93 से 98 तक। बट 98 के बाद मैं एमवे के साथ काम कर रहा था। एमवे वॉज मेयरली माई पार्टनर। एमवे के प्रोडक्ट्स मेरे प्रोडक्ट्स थे। एमवे का दर्द मेरा दर्द था। सो जब भी एमवे डिस्काउंट देता था, मैं सोचता था कि मेरी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन कम हो रही है। That's how I looked at this business and that's how I look at this business. It's my business. प्रोडक्ट भले एमवे मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट किसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है? मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे, क्योंकि मैं पार्टनर हूं ना। मैंने उनको आउटसोर्स किया है, आप अपना समझ लीजिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो मेरी कंपनी है वो। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब आप इस बिजनेस को करना, जब आप बिजनेस करना शुरू करेंगे, यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट्स है, राइट? आपको क्या लगता है सुनील मित्तल भारती को अपने फोन के बारे में 5G के बारे में पता होगा कि नहीं होगा? 4G के बारे में पता होगा कि नहीं होगा? ई सिम के बारे में पता होगा कि नहीं होगा? आदित्य पुरी जब HDFC बैंक के जब CEO थे, तो पता हो क्या करते थे? वो एक दिन महीने में बाहर अपनी कंपनी से बाहर निकलते थे, अपने ऑफिस से बाहर निकल के जाते थे, और दुकान के आसपास, उनके ऑफिस के आसपास जितने भी पान वाले और रेडी वाले हुआ करते थे, उन सबके पास जाके पूछते थे कि आप क्या बैंकिंग कैसे करते हो, कहां से करते हो? आदित्य पुरी की एक बहुत फेमस स्टोरी है कि जब उनका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, तो वो डॉक्टर को HDFC बैंक के बारे में, HDFC बैंक के फायदे बता रहे थे, और उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और बोला कि इनका अकाउंट चेंज करो HDFC बैंक में। Do you feel about your products the same way? Because that's what is the price you will have to pay in your mind. See, the shortest distance between 2 points is a straight line, only if you can see the 2 points. और ज्यादातर लोगों को अपना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता, और इसीलिए वो लड़खड़ाते रहते हैं इस बिजनेस में। The starting point in this business has got to be that this is my business, this is my product. We are manufacturing, Amway is manufacturing for me my products. Okay? And that's how you will be able to, when you tell others about it, when you tell your customers about the products, you'll have conviction about that. You will be able to नजर आएगा आपकी आंखों में वो conviction आपके products को लेके, right? So वो skill सीखना पड़ेगा हमको, right? कि कैसे कम्युनिकेट करना है हमको। सो
हम जब बाहर निकल के बात करना शुरू करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, तो हम दो तरीके से एक्सपैंड करते हैं, दोनों तरीके साइमल्टेनियसली शुरू करते हैं. पहला है कस्टमर, वो व्यक्ति जो कंज्यूमर, जिसे हम कस्टमर या कंज्यूमर बोल सकते हैं, वो व्यक्ति जो हमारे प्रोडक्ट्स, जिसको प्रोडक्ट चाहिए. और मैं आज हर एक व्यक्ति को कंज्यूमर की तरह देखता हूं. हर एक व्यक्ति को. कंज्यूमर कौन होता है? वो व्यक्ति जिसको हमारे प्रोडक्ट की आवश्यकता है. मैं हर एक व्यक्ति को जानता हूं कि उसको प्रोडक्ट की आवश्यकता है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये ब्लड टेस्ट कराएंगे अपना, तो इनको पता चल जाएगा कि इनका विटामिन डी लेवल कम है, इनका ये कम है, उनका वो कम है. हो ही नहीं सकता ना. जब खाने में ही नहीं है तो शरीर में कैसे हो सकता है यार? अगर मेरे शरीर में नहीं जा रहा तो उसके शरीर में कैसे जा रहा होगा ना. मैं इससे तो ना प्रोटीन खाता हूं क्योंकि मैं एमबे बिजनेस में हूं. मैं इससे प्रोटीन खाता हूं क्योंकि मेरी डाइट में प्रोटीन नहीं है. मैं इसलिए विटामिन खाता हूं, मैं इसलिए कॉन्सेंट्रेट फ्रूट वेजिटेबल्स खाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खाने में पूरा राइट मात्रा में प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स नहीं है. मुझे पता है विटामिन डी कम है, मुझे पता है ये चीज. और अगर मेरे अंदर कम है तो उसके अंदर भी तो कम होगा ना. चांसेस तो हाई है ना. सो इसलिए मेरा कन्विक्शन ये है कि हर एक व्यक्ति जो मेरे सामने है, उन सबको मेरे प्रोडक्ट्स की जरूरत है. हर एक आदमी मेरा कंज्यूमर है. सो हमारा पहला तरीके से, जिस तरीके से हम बिजनेस बड़ा करते हैं, वो है वी लुक एट एवरीवन एज अ कंज्यूमर. और दूसरा है वी लुक एट सम ऑफ दोस पीपल एज बिजनेस पार्टनर्स, अगर वो चाहते हैं तो. पीपल लाइक यू. सो वी आर लुकिंग फॉर, वी नो एवरीवन इज अ कंज्यूमर. सो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? Everyone is a consumer. And two, some of these consumers will be my business partners because they have dreams, aspirations, they want to achieve something in life. They want to take advantage of the India growth story. So the skills I have to develop are what? Connection. We have to connect with people. बॉस, जब तक हम कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम लोगों को कन्विंस ही करते रह जाएंगे. ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इसमें ये है, इसमें से. जब आप अपने आप को पाते हो बोलते हुए ज्यादा, समझ जाइए कि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. देखिए, भगवान ने हमको 2 कान और 1 मुंह दिया है, करेक्ट? हमें किस प्रपोर्शन में यूज करना चाहिए? हमें 2 गुना सुनना चाहिए और आधा समय बोलना चाहिए. और अभी अगर मुंह से बोलते भी हैं तो एक छोटा सा सेंटेंस जो कि क्वेश्चन के रूप में होना चाहिए. सो 2 स्किल्स विच वी हैव टू डेवलप, वेदर वी सर्विस कंज्यूमर्स और वी सर्विस आवर बिजनेस पार्टनर्स. सर्विस पार्टनर्स के हो चाहे कंज्यूमर्स हो, दोनों को सर्विस करने के लिए एक स्किल सीखना पड़ेगा, वो है कम्युनिकेशन स्किल. और उस कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है राइट मात्रा में बोलना और राइट मात्रा में सुनना. द राइट मिक्सचर, द राइट अमाउंट ऑफ speaking and right amount of listening. That's called communication. वो सीखना पड़ेगा. क्यों? कि अपने आप से एक सवाल पूछिए. Were you taught how to listen in school, college, in your job? No. We were not taught how to listen. Ask yourself a question. Where were you taught to ask questions? Nowhere. I was not. I have a master's in computer science. I have a bachelor's in computer science. No one ever taught me how to listen, how to ask questions, how to communicate. Nope. I was only taught one thing: answer questions. And when we are trying to connect with people, answering questions is the worst thing you can do. Because people do not want to be sold. They want to buy something. And only when you ask questions, only when you communicate with people, only when you do not give the scent of impressing or convincing people, do people want to connect with you. So that's the second price you will have to pay. That's the price you'll have to pay. What does that mean? Why is the price? Because it will take some time, it will take some effort, it will take some failures, it will take some going through a lot of people, it will take a lot of practicing. I used to stand in front of the mirror and talk. Ask. I used to stand in front of the mirror and ask questions. I used to, driving to work, I would try to say things in the form of questions. I used to read books.
high skill with people, how to influence with people, high trust selling. I would read this book constantly, again and again and again, till I understood how to communicate with people. It's your business, it's your dream, it's your reward, and it's your promise. Remember, you have promises to keep. That's what you have to do. Remember that you have promises to keep. So the second thing you have to do is you have to pay the price to learn the skills of this business. The third thing you have to learn, pay the price, is to develop a work ethic. All of us know how to work hard. All of us know how to work, but what we don't know is how to work ethically. What does that mean? Work ethically means you have to learn to say what you're going to do and then do what you said. Remember, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, ज्यादातर हम लोग नौकरी पेशा होते हैं. मैं तो नौकरी पेशा था. मुझे मेरा बॉस बोलता था कितने समय पे आना है, कितने समय पे जाना है, क्या काम करना है, कब तक काम करना है. तो मेरा काम जो था वो someone else was defining. पर जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो क्योंकि हमें आदत नहीं है अपना काम डिफाइन करने का, इसलिए हम वादा करते हैं कि इतना काम करेंगे, मगर हम उतना काम करते नहीं है. क्यों? अरे यार थोड़ा सा बिजी हो गया यार, अच्छा यार सडनली वो आ गया यार, अच्छा वो. इमेजिन करिए आप अपने बॉस को ये चीज बोले या अपनी नौकरी पे अप्लाई करके देखें, मुश्किल होगी, शायद कर ही ना पाए. मगर हम अपने बिजनेस पे जब आते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? हम वर्क एथिक नहीं करते, एथिकल वर्क नहीं करते. एथिकल वर्क का मतलब होता है कि सही काम. एथिकल वर्क एथिक का मतलब होता है कि से व्हाट यू गोइंग टू डू एंड देन डू व्हाट यू गोइंग टू से, व्हाट यू सेड. से व्हाट यू गोइंग टू डू एंड डू व्हाट यू सेड. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वर्क एथिक. एंड मैं आज, अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे हो, अगर आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो गया है, आपने प्राइस पे कर दी है, मैं आप सब लोगों को बोलूंगा, बिलीव इन द पावर ऑफ नाउ एज अ बिजनेस ओनर. व्हाट इज नाउ? सी, मुझे नहीं पता शाम को क्या होने वाला है, सुबह क्या होने वाला है, पर मुझे पता है कि अभी क्या कर सकता हूं मैं. अगर मुझे अभी 3 सेकंड फ्री मिलते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? अभी मेरे पास अगर 2 मिनट फ्री है तो मैं क्या कर सकता हूं? किसी को कॉल कर सकता हूं. अगर मेरे पास अभी 3 मिनट फ्री है, क्या मैं फॉलोअप कर सकता हूं? जो भी व्यक्ति पावर ऑफ नाउ यूज करना शुरू करेगा, they will start getting results incredibly. And that means what? Look for those small time slices now. Use them wisely. आप देखोगे 3 मिनट यहां, 3 मिनट यहां, 5 मिनट वहां, 10 मिनट वहां. जब आप पूरा दिन देखोगे तो आप देखोगे आपने कितना काम अकॉम्प्लिश कर लिया, कितने लोगों से बात कर ली, कितने लोगों का फॉलोअप कर लिया, कितने लोगों से कनेक्ट कर पाए. बट दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू डेवलप. मेरे को डेवलप करना पड़ा था. 93, 94, 95, 96. I did not have a work ethic. I used to work when I felt like it. जब मुझे लगता था, अच्छा लगता था, तब मैं काम करता था. जब मैं मूड में होता था तब मैं काम कॉल करता था. अब मैं मूड में नहीं हूं, अभी मैं थका हुआ हूं, अभी भूख लगी है, अभी ये है, अभी वो है, मैं टालता था. मैं 2 आदतें एक साथ बिगाड़ रहा था. एक टालने वाली आदत भी डाल रहा था और एक वर्क एथिक वाली आदत भी खराब कर रहा था. एंड सो आई फेल्ड. एंड आई केप्ट फेलिंग. Imagine masters in computer science working for one of the largest software companies in the world, failing in an Amway business. It doesn't matter. I could have failed in any business actually. Why? Because I did not have the skill and I did not have a work ethic. And the moment I had a work ethic and the moment I had a skill, business worked. Lock and key, correct? So the third thing which you'll have to do is learn, pay the price. What does pay the price mean in this? You will have to go through some failures, disappointments before you will get good at this. Are you willing to do that?
I hope so. Because your investors are counting on you. Who is your investor in this business? Your family. Your family gives you their time. That's how I looked at Aarti, Arpita, Anirudh, my parents. I looked at their time as the investment they made in me. So I had to give them a balance sheet. I had to give them a profit loss statement at the end of the quarter. I had to tell them, क्या किया मैंने आपके टाइम के साथ? जो टाइम आपने मुझे दिया था कि जाओ अमित, आप हमारे साथ मत तभी टाइम स्पेंड करो, जाओ अपने बिजनेस को टाइम दो, जाओ आप ये करो, आप जाओ ये करो. जो टाइम मेरे को दे रहे थे उसका हिसाब तो मुझे देना था ना. That's the price I paid. And that's why today we are able to have the lifestyle which we have. The fourth thing which you'll have to learn to do is you'll have to learn to change your association. You have to do that. Who do you listen to? Who do you listen to 24 hours a day? Yourself. And that's why what is important is that you start listening to someone else. You start reading something else. Start reading autobiographies, biographies, how to win friends and influence people, skill with people, magic of thinking big. Read books. Network 21 has a program called the MRB, Monthly Recommended Book Program. Get on that program. Subscribe to that book. If you don't know which book to choose, let Network 21 else, let your team tell you what book to choose. But make sure that you read every day, whatever it takes. I don't care how tired you get, read every day. Listen to an audio, 2 audios, 3 audios every day. You don't have to sit to listen to an audio. Just listen to an audio. Whenever you get a chance, listen to an audio. If you can work and listen to something, do that. But that's the choices you will have to start making. Who are you associating with? Who are you hanging out? Because whoever you hang out with, that's who you will become. If you want to become a multimillionaire, start hanging out with multimillionaires. If you want to be healthy, start hanging out with people who are healthy. So that's the price you'll have to pay. So these 4 things, these are the 4 things which you'll have to do. You have to be self-motivated. You have to learn the skills of the business. Number 3, you'll have to develop a work ethic. Number 4, you have to change your association. Now, a lot of people ask me, how much do I need? How do I know how much to do? And that's why Network 21 strategy comes into play, which is core. All you got to do is become core. 100% personal use, 20, 30 customers, talk to 20, 15, 20 people every day. I'm just kidding. Show the plan to 3 or 4 people or whatever the work ethic you want to develop. But have a number to it. Listen to 1 or 2 audios every day. Read 15 minutes every day. And attend all seminars, all webinars which are happening. And more importantly, be connected with your team and be a team player. So what we developed, Network 21 developed after years of experience globally was that if anyone becomes core, it's equal to success. You stay core for 90 days and you will see results. I promise you. Friends, as I said before, we have missed so many opportunities in our lifetime. The telecom revolution happened, we missed. Real estate revolution happened, we missed. So many revolutions happened and we missed it. Right now, we are part of a health revolution. Don't miss it. Don't miss this opportunity. Right now. I hope you take advantage of it and get back to the person who invited you here today, invited you to this webinar, and get cracking at this. Ask questions. Sit down and understand what this is. And we look forward to inviting you here to listen to your story and to hear from you how you did it. Take care. God bless. Wow.